Good morning, dear students. This is BST class, and we are doing Unit 3 Public, Private, and Global Enterprises. Okay, and first chapter we are doing Public and Private Enterprises. Okay, in which we have already discussed meaning, features, merits, and demerits of public and private sector. Today we will discuss next topic. This is the forms of public sector. Forms of public enterprises or public sector. The government, through public enterprises, participates in the economic activity of the country. So, thus contributes towards the economic development of the country. So, public enterprises are managed through officers and employees who manage business activities on the behalf of the government. Okay, so public enterprises are owned by public, use public funds, and are accountable to public through the parliament. So government participation in business and economic sector of the country needs formal organizational structure. For the economic activities, it undertakes under public sector. So the form of organization depends upon its operations and relationship with the government. The main motive of the public sector is to ensure organizational performance, productivity, and quality standards. So the various forms of the organization in a public sector. First one is the departmental undertaking. Second is the statutory corporation or public corporation. And third is the government companies. Okay. And today we will discuss first form, departmental undertaking. Okay. First form of public sector is the departmental undertaking. Students, departmental undertakings are established under specific ministries. So all activities performed by these departments are integral part of the ministries, thus have no identity. उनकी कुछ खुद की आइडेंटिटी नहीं है, ये मिनिस्ट्रीज के अंडर ही एस्टैब्लिश होते हैं. ठीक है, दोनों गवर्नमेंट्स इसमें आ सकती है, सेंट्रल और स्टेट. Of national importance. It Examples of departmental undertakings. First is the railway. Third is All India Radio, the Doordarshan, telephone services, ordnance factory. These are the examples. Okay. So this is the most popular form of the managing public enterprises. These enterprises are necessarily fully owned and controlled by the government. Okay. And the secretary of the department is its chief executive officer who works under the guidance and control of the ministry, right? And every year its budget is prepared and government approval is obtained. And some features. First is the formation. The main features of the departmental undertakings are: first is the formation. These are the formed as government departmental by the government. Each government department is associated with a special ministry. जैसे अभी आपने देखा रेलवे, तो रेलवे मिनिस्टर जो है उसके अंदर रहेगा वो सारा, राइट? तो ये सब प्रॉपर फॉर्म्ड रहेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर. सेकेंड इज द ओनरशिप.
सो देयर ऑनरशिप लाइज कंपल्सरी विद द गवर्नमेंट, इसकी जो ऑनरशिप है वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही है. थर्ड इज द मैनेजमेंट. These are managed by the ministry concerned. The secretary of the department is their CEO, means chief executive officer. वही सारा इसको manage करेगी. And fourth point is the financing. Their financing is completely done by the government through general budget. They have no right to borrow from public. Public से वो कुछ भी पैसा नहीं लेते हैं. जो भी पैसा यूज किया जाता है वो गवर्नमेंट का रहता है. So the departmental undertaking receive funds from the government treasury. Treasury means जो गवर्नमेंट का खजाना रहता है. So the investment in departmental undertaking are planned as part of the annual budget of the government. Okay. Next, जो रेवेन्यू होते हैं, जो इनकम रहती है, दैट आल्सो रेवेन्यू अर्न्ड बाय द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज पेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी. जो ये इनकम इनकी रहेगी वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जाती है. ओके. Fifth point is the appointments. The appointments in these undertakings are made through UPSC, अगर आपने सुना होगा, Union Public Service Commission, and SSB, Staff Selection. इसके थ्रू इनके अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं. सो दीज डिपार्टमेंट्स में हैव देयर ऑन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड. फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे सर्विस कमीशन है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट. एंड दीज एम्प्लॉइज ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. जो भी इसके अंदर वर्क करते हैं ना एम्प्लॉइज, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है इनके अंदर. नेक्स्ट 6th पॉइंट इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. These undertakings do not have any existence of their own. In their other words, they cannot have any property in their own name. अपने नाम से वो कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते. मतलब गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं, तो गवर्नमेंट के अंडर ही उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी, उनकी आइडेंटिटी रहेगी. They cannot file any court case against anyone without the permission of government. गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो लोग कहीं पर भी किसी के अगेंस्ट भी केस भी नहीं कर सकते. ओके. And 7th point is the administrative autonomy. So they do not have any administrative autonomy because they are in the form of government department. So there is regular political interference in their operation. Political interferences रहेगा इनके अंदर. ठीक है. And then the merits. First is the easy formation. These undertakings are formed very easily as registration is not needed for their formation. इसके लिए कोई registration की need नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा formalities नहीं है. So they are established just as the administrative order of the government. एक administrative order चाहिए government का, उससे ही ये open हो जाती है. Second is the effective control. The management of these undertakings work under the rules framed by the relevant ministry. So apart from it, work is done by educated and trained officers. जो इसमें इसके अलावा जो काम वैसे वो मिनिस्ट्री के अंडर हैं, क्योंकि मेन जो रोल है वो उसके जो भी मिनिस्टर होगा परफॉर्मेंस के लिए, बट जो इसके अंदर वर्क कर रहे हैं पर्सन वो एजुकेटेड हैं और ट्रेंड ऑफिसर्स हैं. एज ए रिजल्ट एन इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी अचीव्ड. ओके. थर्ड पॉइंट इज द इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम. Income जो fetches by the activities of these undertakings is in fact the income of the government. जो भी पैसा इन एक्टिविटी से रिसीव होता है ना इनको, जो भी जैसे अब रेलवे है सपोज, तो रेलवे से अब कितनी इनकम रहती है, वो सारी इनकम जो है वो गवर्नमेंट की इनकम है. सो दस दिस अर्न्ड इनकम एड्स टू द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इनकम. ये किस में ऐड होती है? गवर्नमेंट ट्रेजरी में और गवर्नमेंट की इनकम में. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज इन टैक्स बर्डन. Government put tax on public to meet its expenditure, but this need is naturally fulfilled as soon as these departmental undertakings have their own income. So as a result, government lessens the burden of the taxes on the public. क्योंकि वैसे भी जो टैक्सेस से जो भी इनकम आती है वो पब्लिक के लिए वो इकट्ठा करते हैं. सो अब यहाँ पर उनका वो यहाँ पर टैक्स बर्डन डिक्रीज रहता है, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू वो लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं पब्लिक को, उसमें थोड़ा सा जो पैसा है, जो एक्सपेंस है वो सॉरी जो इसके ऊपर पब्लिकली जो भी है उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें कम से कम प्राइसेस रखते हैं. ठीक है. इससे पब्लिक को बर्डन कम रहता है टैक्सेस का. टैक्स रेट बहुत कम ना के बराबर ही होता है एक तरह से. ठीक है. देन इजी फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग बिकम्स वेरी इजी as it is managed by the government. क्योंकि सारा कुछ गवर्नमेंट के हैंड में ही है, तो जो इजी फाइनेंस
activities are done with the approval of government and official have complete control over them, so there can be no misutilization of funds. इसका मतलब ये होता है कि सारे एक्टिविटीज जो भी डन की गई हैं वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से ही होती हैं और इसमें पूरा कंट्रोल उन ऑफिसर्स का रहता है जो बहुत ही एजुकेटेड और ट्रेंड ऑफिसर्स हैं और उनके अंडर रहते हुए ये सारे उनके कंट्रोल में ये वर्क होता है। सो इसमें मिस यूटिलाइजेशन कभी होने के चांसेस नहीं रहते फंड्स के। एंड देन द limitations of departmental undertakings. First one is the lack of prompt action, क्योंकि गवर्नमेंट का वर्क जो है थोड़ा सा डिले हो जाता है, सो द सेंट्रली कंट्रोल्ड मैनेज्ड एंड एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज जनरली कॉज डिले इन द टेकिंग डिसीजन एंड कॉन्सिक्वेंटली नो क्विक एक्शन कैन बी टेकन, सो दैट्स व्हाई मेनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट आर मिस्ड। काफी अपॉर्चुनिटीज ये मिस कर जाते हैं, सिर्फ इनके जो डिसीजन है वो डिले हो जाते हैं। Second point is the lack of flexibility. There is lack of flexibility due to strict government rules, whereas it is essential for the successful operation of an undertaking. एक बार जो ये rules और regulations बनाते हैं उनको ये properly follow करते हैं, उसको change नहीं करते, flexibility नहीं रहती इसमें। अदरवाइज क्या होता है प्राइवेट के केस में अगर कुछ इस तरह की हैपनिंग होती है तो कई बार वो अपनी उस चीज में चेंजेस कर सकते हैं, है ना, और लेकिन ये पब्लिकली ये गवर्नमेंट की बनाए हुए रूल्स होते हैं तो इनको चेंज करना भी इजी नहीं होता है। सो फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, उसकी वजह से स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है और इससे भी काफी लॉसेस या कई बार कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती है। थर्ड इज द लैक ऑफ इंसेंटिव्स. So it may be appear that powers which the official enjoy may spur them to work for earning the maximum for the undertaking, but in reality official of the departmental undertaking have very limited powers. जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास एक्चुअल में इनके पास बहुत लिमिटेड पावर रहती है इसमें। सो विद द रिजल्ट दे डू नॉट पुट एनी स्पेशल एफर्ट टू मैक्सिमाइज इनकम, अपनी इनकम को वो खुद से इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, इनके जो रूल्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी इनकम जो है वो बढ़ सकती है। तो मतलब जो एम्प्लॉइज की सैलरी डिसाइडेड है मींस वही उनको मिलती है अगर वो अपनी तरफ से जितने मर्जी एफर्ट्स करें, लेकिन टाइम पे ही अकॉर्डिंग टू टाइम उनकी ट्रांसफर उनकी प्रमोशन वगैरह होती है आफ्टर सम टाइम, जैसे 5 years 10 years के बाद, ठीक है, तो वही उनको रूल्स के अकॉर्डिंगली ही उनको प्रमोशन वगैरह मिलती है और उनके इंसेंटिव्स बढ़ते हैं। देन लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. So these undertakings do not pay special attention to ongoing losses for want to competitive feelings. इनके अंदर कंपटीशन की कोई फीलिंग्स नहीं रहती है, इसे क्योंकि ये लॉस हो ये प्रॉफिट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इनके अंदर प्रॉफिट मोटिव की भी इतनी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने की भी इतनी ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता। सो नॉट ओनली दिस दे आर केयरलेस अबाउट द इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। इनके माइंड में ये भी नहीं होता कि कंज्यूमर्स की क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या नया करें या क्या कुछ नया ऐड करके उसमें लेके आए जो अकॉर्डिंग टू मतलब कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली होगा। ये चीजों की भी थोड़ी प्रॉब्लम इसमें कमी रहेगी। एंड देन इंक्रीज इन टैक्स burden of heavy losses of departmental undertaking falls on the government exchequer. इट मीन्स जो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं, अगर जो इतने सारे ये प्रॉब्लम्स जैसे अभी हमने डिस्कस करी इसके चलते हुए काफी लॉसेस में अगर ये चले जाते हैं तो उसकी वजह से इनके ऊपर लॉसेस का बर्डन आ जाता है एंड गवर्नमेंट लेवीज टैक्सेस ऑन द जनरल पब्लिक टू द कंपनसेट सच लॉसेस। इन लॉसेस को पूरा करने के लिए फिर वो जो गवर्नमेंट है वो जनरल पब्लिक के ऊपर बर्डन डालती है जो कि टैक्सेस की फॉर्म में उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। एंड देन मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर आती है और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है और मिनिस्ट्री जो है वो सारी पॉलिटिकल से रिलेटेड है, पॉलिटिकल्स के अंडर आती है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा रहता है। जो मिनिस्टर है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी गिव्स मोर प्रायोरिटी टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टी, उनको अपने पार्टी की ज्यादा प्रायोरिटी रहती है उनके लिए देन द बेनिफिट ऑफ द कंट्री के बजाय वो अपने पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। एंड द रेड टेपिज्म, last point, so excessive paperwork and habit of not finishing the work give rise to red tapeism. red tapeism means होता है कि जो फाइल्स एक के ऊपर एक ढेर लगा रहा है, मींस वो वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। एक्सेस में जो पेपर वर्क होता है इतना ज्यादा की वजह से इनके पास इतना काम जो है वो
So consequently, there is a heap of the files tied in red tape. The utility of the departmental undertaking exhibits itself in the these situations. First of all, ये कब suitable है ये इस तरह के undertaking जो public and where third is the where services for the public utility are to be made available and contribution of the private sector is nil. Okay, and last where heavy investment is involved without any guarantee of profit. तो उन सिचुएशंस में ही जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो सुटेबल है. Okay, so students, now my topic is completed and revise this topic. Students, if you have any queries now you can ask. Okay.